This video by Ignited Minds Tutorials contains an introduction to economics as a subject and is specifically covering the chapter of economics for Class 9 Maharashtra State Board syllabus. It discusses the meaning of economics, definitions by Adam Smith and Robbins and various factors related to economics. Besides, it also contains a discussion of the various probable questions and the style and syntax of writing their answers. Chapter 1 Introduction to Economics. Chapter Outline 1.1 Introduction. Economic Progress of a Human Being. 1.2 Meaning and Definition of Economics. Adam Smith, Dr. Alfred Marshall, Professor Lionel Robbins. 1.3 Importance of Study of Economics. Intellectual Value, Practical Purpose, Government Bodies. Learning Outcome. After reading this chapter, you will be able to understand stages of economic development of man, meaning and definitions of economics, need and importance of the study of economics. 1.1 Introduction. Economics is a subject which you will be studying in the 9th standard for the first time. In these few chapters, let us get acquainted with the subject, which is considered to be an important social science. Economist Professor P.A. Samuelson has called economics as the queen of social sciences. Economic progress of a human being. Man is a social animal and economics is an important branch of social science. Therefore, economics studies man's economic behavior in the society. This economic behavior started right from the evolution of man. In prehistoric period, man wandered from one place to another to satisfy his wants. During those days, human wants were limited and could be fulfilled from various natural resources freely available in nature. For example, caves to stay, leaves for clothes, etc. As man started progressing, his wants multiplied. Necessity is the mother of invention. So man started to discover and invent various ways by which his wants could be satisfied from the available resources. He slowly started to exchange goods for goods, which was later known as the barter system. With the advent of money, it transformed into trade. This evolution brought about socio-economic development in the economy. In short, economics is the study of how people choose to use resources like time, money, labor, land, equipments, etc. effectively. Economics examines how people use limited or scarce resources to satisfy their unlimited wants. 1.2 Meaning and Definition of Economics. Meaning. Economics developed as a separate study dealing with various economic aspects of human behavior in the society. The term economics is derived from the Greek word oikonomia, meaning household management. Household management and economics have many similarities. Definitions. Economics has been defined by various economists as follows. Adam Smith. Adam Smith is considered the father of economics. In his book Wealth of Nations, published in 1776, he describes economics as a science of wealth. His definition of economics is a wealth-oriented definition. Dr. Alfred Marshall. Dr. Alfred Marshall
In his book, Principles of Economics, published in 1890, explains economics as a science which studies human welfare, and hence his definition of economics is known as welfare-oriented definition. Professor Lionel Robbins. In 1932, Professor Lionel Robbins' book, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, explained, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. This is the modern definition of economics. His definition is characterized as scarcity-oriented definition of economics. 1.3 Importance of study of economics. Today, economics is considered to be one of the most important branch of knowledge. Economics is applicable in a wide range of fields including agriculture, business, finance, administration, law, local and international government, and in our day-to-day working environment. Importance of the study of economics. 1. Intellectual value. 2. Practical purpose. 3. Government bodies. Intellectual value. The study of economics makes us realize that the human beings are dependent on one another for their daily needs. It also broadens their outlook and helps them in balanced thinking. Practical purpose. The knowledge of economics helps the consumer to adjust his expenditure with his income so that he derives maximum satisfaction. It helps the producer to make optimum use of the resources so that he can earn profits. Sellers can also determine the prices with the knowledge of economics. Thus, we find that knowledge of economics helps an individual to become a better and more efficient consumer, producer, businessman, etc. Government bodies. The study of economics is helpful for the government to understand the various socio-economic problems such as unemployment, inflation, poverty, etc. Knowledge of economics helps government bodies to frame proper fiscal policies, tax policies, etc., which would help the government to earn revenue for the economy. For example, the graph below explains the growth rate of mobile market in India. Therefore, the study of economics is useful to every individual in the modern economy. Glossary. Intellectual value, processing high level of understanding, ability. Dependent, person who relies on another. Inflation, rise in prices of goods and services. Fiscal policies, government policies on revenue and expenditure. Revenue, income. यक्षिता, इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है? जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, और वेस्ट से ईस्ट की तरफ? इंटरनेशनल डेटलाइन टेढ़ा मेढ़ा क्यों गया है? अच्छा, हमने आपका नाम मेंशन किया था क्योंकि आप एब्सेंट थे. एब्सेंट रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वीडियो ना देखना ये प्रॉब्लम है. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. और वीडियो किसी ने भी नहीं देखा है, 0 व्यूज दिखा रहा है ऑब्वियसली. ओके, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. हम यहाँ पे अभी भाई साहब बात करेंगे इकोनॉमिक्स की. ठीक है, जस्ट
सो इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? धंधा, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब धंधा, बिजनेस, ठीक है, कितना हो रहा है। और इकोनॉमिक्स किन चीजों का हो सकता है? देश देश का धंधा नहीं होता, बस देश में धंधा होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स किन चीजों का हो सकता है? जो आप व्यवहार करते हो, है ना। आप सांस ले रहे हैं, हवा आपके लिए जरूरी है, लेकिन क्या हवा का धंधा होता है? कोई हवा बेचता है आपको? नहीं। यू डोंट पे एनीथिंग, राइट, बट इट इज नॉट एक्सपेंसिव बिकॉज इट इज अवेलेबल टू एवरीवन। द एयर इज अवेलेबल टू एवरीवन, इट इज फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन। सो इसका भाई साहब इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता, है ना। इकोनॉमिक्स उन चीजों का होता है, या धंधा उस चीजों का होता है, या बेचे और खरीदी वो चीजें जाती हैं जो सबके पास ना हो, जो स्केर्सिटी हो जिस चीज की। हवा सबके पास है, एक रास्ते के भिखारी के पास भी भाई साहब हवा है, और मुकेश अंबानी के पास भी हवा है ना। एवरीबडी इज गेटिंग दैट एयर टू ब्रीथ इन। सो ऐसा नहीं है कि कोई खरीद के उसको ले रहा है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप बताएंगे कि भाई साहब कार भिखारी के पास नहीं होगा, लेकिन मुकेश अंबानी के पास होगा, है ना। सो दैट इज समथिंग। तो मतलब जो चीजें स्केर्स हो, जो चीजें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, जिन चीजों की कमी हो, धंधा उसी पे हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे, हवा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डायमंड? हवा, जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। आप 2 मिनट नाक बंद रखेंगे, तीसरे मिनट में भाई साहब कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है, इतना इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन इसके लिए आप रत्ती भर का भी पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप डायमंड देखो, किसी काम का नहीं है आपके, ठीक है, कितना पैसा खर्चा करके आप उसको पहन रहे हैं। सो इसका मतलब यूटिलिटी नहीं है, वैल्यू डिटरमिन होती है स्केर्सिटी से। कितना हमारे लिए कोई चीज यूजफुल है, उससे वैल्यू डिटरमिन नहीं होती है। समझ में आ रहा है? हवा हमारे लिए बहुत यूजफुल है, हम हवा के बिना 2 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, एयर के विदाउट हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो सबको अवेलेबल है, स्केर्सिटी नहीं है, उस चीज की कमी नहीं है। डायमंड हमारे लिए कोई यूज नहीं है, हाँ हम कान में लगा के घूम रहे हैं भाई साहब, ठीक है, या किसी ऑर्नामेंट में लगा के घूम रहे हैं, लोग बोलेंगे हाँ तुम्हारे पास डायमंड है, लेकिन क्या यूज क्या है? एक फर्नीचर का उससे ज्यादा यूज है, कम से कम आप बैठ तो पा रहे हैं उस पर, ठीक है। एक भाई साहब पेंसिल का ज्यादा यूज है उससे, आप उससे लिख तो पा रहे हैं, लेकिन डायमंड का कोई यूज नहीं है, लेकिन उसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, है ना। सो किसी चीज की यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस पे वैल्यू निर्धारित नहीं होती है, किसी चीज की वैल्यू निर्धारित होती है कि वो सबको अवेलेबल है या नहीं, उसके स्केर्सिटी पे। डायमंड की वैल्यू इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो स्केर्स है, मतलब वो रेडिली अवेलेबल नहीं है, बहुत कम जगहों पे और बहुत कम मात्रा में डायमंड मिलता है, ठीक है, इसीलिए वो भाई साहब एक्सपेंसिव है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, हम भाई साहब इकोनॉमिक्स को पढ़ने, जानने और समझने की कोशिश इसलिए करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है वो आपका एक सेपरेट सब्जेक्ट है अगर आप कॉमर्स लेने जाएंगे तो, ठीक है। जब आप 11th या 12th में कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे इकोनॉमिक्स होता है, अकाउंटेंसी आपका मेन होता है, बीके या अकाउंटेंसी जिसको हम बोलते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फिर आपका इकोनॉमिक्स होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कॉमर्स होता है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है, मैथ्स होता है, ये सारे तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं। इकोनॉमिक्स वहाँ पे एक बड़ा सा बुक है, मतलब एक बड़ा सा आपका अलग सेक्शन है। तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब आप 10th में जाएंगे या 11th में जाएंगे तो आपको झटका नहीं निकलना चाहिए, अच्छा भाई ये क्या है, हमने तो कभी सुना ही नहीं, ठीक है। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज ऑफ नाउ, ठीक है। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड पीपल। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस हियर? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमी, एंड वी विल बेसिकली डू अ चैप्टर एट अ ग्लांस, ठीक है। इंट्रोडक्शन, भाई साहब यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्या है? एन इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंसेस मैनेजमेंट is mainly related to income and expenditure, that is economic factors. This led to the birth of economics. तो आप कितना पैसा कमाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप खर्चा कितना करते हैं, है ना, ठीक है। आपके घर में राशन के लिए खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए खर्चा है, आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए खर्चा है, ये सारे तमाम खर्चे हैं। आप अगर घर में रेंट पे रहते होंगे तो रेंट का खर्चा है, और आप अगर खुद के घर में रहते होंगे तो ईएमआई अगर भरते होंगे तो उसका खर्चा है, आप अगर खुद के घर में रहते होंगे तो उसका एक मेंटेनेंस आता है, उसका खर्चा है, ये सारे खर्चे हैं आपके, है ना, ठीक है। दीज आर बेसिकली द एक्सपेंसेस दैट यू विल हैव। तो इतना आपको कमाना पड़ेगा। लेट्स से अगर आप देख रहे हैं कि महीने भर का खर्चा 10-12 हज़ार रुपए हो रहा है, तो आपको कम से कम 15 या 20 हज़ार रुपए कमाना पड़ेगा। सबको तो आप खर्चा करके बैठ नहीं सकते, यू विल हैव टू हैव सम अमाउंट ऑफ मनी एंड सरप्लस एज वेल। सो ये जो हाउस होल्ड मैनेजमेंट होता है, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा,
An individual or family finances management is mainly related to income and expenditure, that is economic factors. This led to the birth of economics. और यहीं से भाई साहब इकोनॉमिक्स का जन्म होता है. ठीक है, हम घर को मैनेज करते करते फैमिली को मैनेज, पहले तो हम पर्सनल मैनेज करते हैं, है ना. समझ लो मैं अगर बैचलर हूं तो मैं अकेले रहता हूं किसी दूसरे शहर में, तो मैं क्या देखूंगा, मैं जितना भी इनकम कर रहा हूं उसमें मेरा खाना पीना और मेरा रेंट, ठीक है, और क्या भाई साहब थोड़ा बहुत फैमिली को दूंगा मैं, और बाकी जो बचता है ये मेरा हो गया खर्चा. तो ये हो गया मेरा इकोनॉमिक्स. उसके बाद मैंने शादी ब्याह किया, बच्चे हुए, तो ये बन गया मेरा फैमिली. अभी फैमिली का खर्चा बढ़ेगा तो मेरा इनकम भी बढ़ना चाहिए. ठीक है, इस तरह से हमारा इकोनॉमिक्स. तो पहले हम इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर आते हैं हम भाई साहब एक रीजनल लेवल पे. रीजनल लेवल पे लोग गरीब हैं या लोग अमीर हैं, एक खर्चा होता है. फिर हम कंट्री लेवल पे आते हैं, फिर हम भाई साहब पूरे वर्ल्ड के लेवल पे आते हैं. तो इकोनॉमिक्स जो है वो घर से स्टार्ट होता है, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड को फैल जाता है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड का भी एक खर्चा है. ठीक है, पूरे देश का एक खर्चा है, पूरे यूनिवर्स का एक खर्चा है. ठीक है, सो एन इंडिविजुअल और फैमिली फाइनेंसेस मैनेजमेंट इज मेनली रिलेटेड टू फैमिली का इनकम और फैमिली का एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स. और इसी से जन्म होता है भाई साहब इकोनॉमिक्स का. ठीक है, द वर्ड इकोनॉमिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स फैमिली मैनेजमेंट. ओइकोनोमिया मतलब एक ग्रीक वर्ड है और ओइकोनोमिया मतलब फैमिली मैनेजमेंट होता है. तो फैमिली को मैनेज करते करते ही आप भाई साहब जिम्मेदार बनते हैं. ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं बच्चा बड़ा हो गया है, उल्टा चिल्टा जवाब दे रहा है. ठीक है, तो जैसे अगर भाई साहब के इनके पेरेंट्स आ गए तो ये बोलेंगे कि भाई ये आजकल बड़ा उल्टा जवाब दे रहा है, ऐसा बोलते हैं जनरली पेरेंट्स. ठीक है, मैं बोलता हूँ इसके जिम्मेदार कुछ हद तक पेरेंट्स भी हैं और इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके जो माइंड की कैपेबिलिटीज़ है वो भी ज़्यादा हो रही हैं, है ना. सिर्फ पढ़ाई पे आपने उसको लगा के रखा है, तो पढ़ाई तो चलो आपके एज के हिसाब से हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो और डेवलपमेंट होगा उसके बारे में तो आपने कुछ किया नहीं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ अगर आप 9th में आ गए हैं ना, तो साल में ना 2-3 बार आपके साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. आपके घर में जितनी भी कमाई है, मतलब समझ लीजिए आपके मम्मी और पापा अगर दोनों भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है, तो जितनी भी कमाई है आपको दे देना चाहिए. ये लो भाई साहब, महीने के पहली तारीख में ये रहा पैसा, सब कुछ मैनेज करना है तुम्हें, किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर सब कुछ. आपके साथ अगर ऐसा 2-3 महीने किया गया तो आप अपने आप जिम्मेदार हो जाएंगे. ठीक है, आप अपने आप जिम्मेदार हो जाएंगे, क्योंकि आप जब देखेंगे अरे पैसा आ गया, अरे आया गया, ऐसा कभी कभी आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं. आपको पैसा दिया गया, आपने भाई साहब आईफोन खरीद लिया. ठीक है, पता चला घर में कल टेबल पे खाने को कुछ नहीं है, तो ठीक है भाई, नहीं है तो नहीं है, भूखे सोएंगे और क्या. ठीक है, लेकिन आपको जन्म भर की सीख मिल जाएगी कि पैसा बहुत सोच समझ के खर्चा जाता है, क्योंकि इसको कमाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं. ठीक है, तो ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई थिंक आइडियली, ठीक है, बच्चे को अगर रिस्पॉन्सिबल बनाना है, आप अगर देखो ये बोलना आसान है, पेरेंट्स के लिए बोलना आसान है, बच्चा मेरा जिम्मेदारी नहीं हो रहा है, इसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. अरे आपने दी नहीं है कभी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कहाँ से बनेगा वो. आपने उसको पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चलो नहीं मान, उसका मन नहीं लगता होगा पढ़ाई में, लेकिन आपने उसके अलावा उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं है. ठीक है, तो अगर इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दी जाए एट एन अर्ली एज, आई थिंक दे विल बी मोर मैच्योर्ड व्हेन दे विल बी स्टार्टिंग टू अर्न मनी. प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप पैसा कमाने लगते हैं तब आपके उल्टे सीधे खर्च ऐसे निकलते हैं भाई साहब, खड़. ठीक है, एक राक्षस की तरह भाई साहब सारी चीज़ें, आईफोन लेना है, ये करना है, वो करना है, ये सब आपके निकलेंगे, ये जो दबाए हुए अरमान है वो निकलते हैं आपके. ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रेनिंग पहले ही लाइफ में मिल जाती है कि पैसे को कैसे खर्च किया जाता है, कैसे फैमिली को चलाया जाता है, then you will know what is economics. ठीक है, so the word economics comes from the Greek word oikonomia, which means family management. ठीक है, which means family management. Okay, according to Lionel Robbins, economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. बहुत complicated definition है. तो economics है क्या? Economics एक science. What is science? What is science? साइंस क्या होता है? जिसके कॉजेज और इफेक्ट्स को आप डिटरमिन कर पाए कि भाई साहब ये इसके कॉज, कोई एक फिनोमिना हो रहा है तो आप बोलेंगे इसके कारण ये है,
ये कारणों को अगर रखा जाए तो ये रिजल्ट आएगा, ये साइंस है ना भाई साहब, ये कारण है, इन कारणों को अगर रखा जाए तो यही रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड साइंस, जिसमें आप कॉज और इफेक्ट को कोरिलेट कर पाए। इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है, ये आप यहां पे भी कॉज और इफेक्ट को आप कोरिलेट कर पाएंगे। जैसे किसी चीज का दाम अगर बढ़ गया अचानक भयानक, तो लोग उसमें कम खर्चा करेंगे, सिंपल सी बात है ना, कॉज इफेक्ट। किसी चीज का दाम अगर कम हो गया तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, कॉज इफेक्ट, सिंपल सा साइंस है ना। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, मतलब आप किस चीज के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं डिपेंड करता है कि भाई साहब वो चीज कितने मार्केट में अवेलेबल है और कितने पैसों पे अवेलेबल है। चीज का दाम अगर कम होगा तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, चीज का दाम अगर ज्यादा होगा तो कम लोग खरीदेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, मतलब कॉज एंड इफेक्ट से आप को रिलेट कर सकते हैं, कॉज और इफेक्ट से आप को रिलेट कर सकते हैं, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर मतलब यहाँ पे आपको कितना गुस्सा आता है, तुमको हर समय हंसी क्यों आती रहती है, कुछ फनी चल रहा है क्या? खैर, आपको कितना गुस्सा, बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर में जैसे आपको कितना मजा आ रहा है, आपको कितना जोकिंग लग रहा है, या आपको कितना क्रोध आ रहा है, ये सब नहीं। ह्यूमन बिहेवियर मतलब इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बिहेवियर मतलब इकोनॉमिक्स, मतलब जैसी चीजों के दाम कम हुए तो आप उस चीज को ज्यादा खरीदेंगे, जैसी चीजों के दाम बढ़ गए तो आप उस चीज को कम खरीदेंगे। ये हो गया ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। सो इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स, आपको समझ लो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए आपको नोटबुक और बुक दोनों भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ाई करके शिक्षित बनना है, एग्जाम पास करना है, ये हो गया आपका एंड। You will have to basically qualify in your exams or you have to pass your exams to get into the next standard. That becomes your end. और means क्या होंगे? means क्या होंगे? आपके किताब, आपके नोटबुक्स, आपका भाई साहब क्लास अटेंड करना, स्कूल में जाना, लेक्चर अटेंड करना, ये सब हो गया आपके स्केर्स मीन्स। ये सबको अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रस्ते पे भाई साहब आपके नोटबुक पड़े नहीं है, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आपके जिसमें भी आपके पाठ्य पुस्तकें हैं वो ऐसे ही कोई फ्री में नहीं बांट रहा है, वो आपको पैसा खर्चा करके खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर नोन एज स्केयर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये जो आपके मीन्स हैं इनके अलग अलग यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है अगर, तो आप उसको लाइट के लिए यूज करते हैं, टीवी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आप उसको भाई साहब ओवन के लिए यूज करते हैं भाई साहब, वॉशिंग मशीन के लिए यूज करते हैं भाई साहब। एक ही चीज है, अलग अलग यूजेस हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो इतने तमाम जो आपके गैजेट्स हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। क्लियर है पीपल हम, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस हो गया, क्यों? क्योंकि इसके कॉज और इफेक्ट को आप कोरिलेट कर सकते हैं। ये करेंगे तो ये होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो साइंस का सब्जेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये आपने बहुत अच्छी पेंटिंग की लेकिन मुझे पसंद नहीं, ये साइंस नहीं है। किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं पसंद आ रही, ये साइंस नहीं है, ठीक है। आपने ये किया तो ये होगा ही होगा। इफ यू हैव डन ए यू विल रीच बी, इसको हम बोलते हैं साइंस। तो इकोनॉमिक्स भी एक साइंस है, इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ साइंस, ठीक है। यहाँ पे आपके चीजों के दाम बढ़ेंगे, अगर किसी चीज का दाम अगर बढ़ गया लोग कम खरीदेंगे, किसी चीज का दाम अगर कम हो गया लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे। विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, in terms of expenditure, in terms of buying products, in terms of selling products, ये आपका ह्यूमन बिहेवियर है। कितना गुस्सा आ रहा है, कितना आपको प्यार आ रहा है, ये सब नहीं। ह्यूमन बिहेवियर, आपके ह्यूमन बिहेवियर को ये ट्रैक करता है। ह्यूमन बिहेवियर मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सब, ठीक है। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स मतलब अंजाम, ठीक है। एंड स्केयर्स मीन्स, आपको किसी भी रिजल्ट तक अगर पहुंचना है तो आपको कुछ मीन्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अगर आपको शिक्षित होना है तो आपको रेगुलरली स्कूल जाना पड़ेगा, भाई साहब बुक्स, नोटबुक्स ये आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दीज आर मीन्स। स्केयर्स, जो आपके स्केयर्स होंगे उन्हीं का मोल भाव हो सकता है। जो चीज रेडिली अवेलेबल होगी उसकी यूजफुलनेस चाहे जितनी भी हो, लेकिन उसके लिए कौन पैसा देगा। जैसे अगर आप देखोगे नमक जो है उसका दाम बढ़ता ही नहीं है। कितने रुपए है एक केजी नमक का? कितना है? 12 रुपए, 10 रुपए। मेरे टाइम पे भी इतना ही था। अगर चावल देखोगे मेरे टाइम पे भाई साहब 2 रुपए केजी भी आता था, आज की तारीख में 40-50 रुपए हो गया। नमक का दाम ज्यादा नहीं बढ़ा, उतना ही था, आज भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब नमक को बनाने में क्या है, एक बाल्टी समुद्र का पानी लेकर आओ, उसको सुखा दो, नमक बन जाएगा भाई साहब। क्या है इसमें? देयर इज नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इट, ठीक है। इसीलिए इसका दाम भी नहीं बढ़ रहा है। ये स्केयर्स नहीं है, ये सबको रेडिली अवेलेबल है भाई साहब, इट इज अवेलेबल,
ठीक है। एयर इज रेडिली अवेलेबल, इनका यूज बहुत है लेकिन इनका रेडिली अवेलेबिलिटी है, ये दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स विच आर स्केर्स। डायमंड जैसा एक घटिया प्रोडक्ट जिसका एक्चुअली में कोई यूज नहीं है, उसके लोग करोड़ों रुपए दे रहे हैं क्योंकि वो स्केर्स है। स्केर्स है मतलब वो मिलता नहीं है। स्केर्सिटी मतलब होती है जो बहुत कम अवेलेबल है, जिसकी क्वांटिटी जो अर्थ में है बहुत कम है, वेरी लेस, ठीक है। तो जितना कोई क्वांटिटी स्केर्स हो जाता है उतना ही उसका भाव बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एडम स्मिथ, तो ये भाई साहब अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं। लायनल रॉबिन्स का बेस्ट इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन 1776। ही हैज डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। तो इन्होंने बोला कि वेल्थ क्रिएशन का जो साइंस है, पैसा क्रिएट करने का जो साइंस है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। बट दिस इज अ मोर बेटर डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को हम बोलेंगे भाई साहब वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। दिस इज नोन एज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन गिवन बाय एडम स्मिथ एंड लायनल रॉबिन्स हैज गिवन स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ओके, नेचर एंड इंपॉर्टेंस भाई साहब, हाउ टू सैटिस्फाई द इनफाइनाइट नीड्स ऑफ पीपल यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज इज द स्टडी मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। हमारे वांट्स कितने हैं, कितने वांट्स हैं ह्यूमन बींग्स के, क्या क्या हमारे वांट्स हैं, हाउ मेनी वांट्स आर देयर, इज देयर अ लिमिट टू योर वांट्स? नहीं है ना भाई साहब। ह्यूमन बींग्स के वांट्स अनलिमिटेड है। आज की तारीख में आपको लग रहा होगा एक साइकिल मिल जाए मस्त वाली, कल को आपको वो साइकिल मिल जाएगी तो आप बोलेंगे अरे यार एक बाइक मिल जाए मस्त वाली, कल को बाइक मिल जाएगा तो आप बोलेंगे भाई साहब 4 व्हीलर मिल जाए मस्त वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपके वांट्स कभी फुलफिल नहीं होंगे। ह्यूमन बींग्स के लिए वांट्स इनफाइनाइट है, देयर आर इनफाइनाइट वांट्स। किसी एनिमल को पकड़ोगे उसका एक ही वांट है भाई साहब, खाना पीना मिलता रहे उसको, ठीक है। तो ये सारा है। ह्यूमन बींग्स के वांट्स जो है भाई साहब क्या है, इनफाइनाइट है। हाउ टू सैटिस्फाई इनफाइनाइट नीड्स ऑफ द पीपल यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे इतने सारे लोगों के वांट्स को फुलफिल करने का जो टेक्निक है उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हाउएवर वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है। वांट्स आपके अनलिमिटेड हैं। फ्रॉम इकोनॉमिक्स वी अंडरस्टैंड हाउ टू यूज। तो हम इकोनॉमिक्स से क्या क्या समझते हैं, टाइम, मनी, लेबर एंड लैंड, इसको कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। आपको भाई साहब धंधा करना है, आप उठते हैं सुबह के 12-1 बजे, क्या धंधा करेंगे आप? और जिन लोगों को धंधा करना रहता है वो भाई साहब 7-8 बजे से लग जाते हैं धंधे पे, ठीक है। तो टाइम का आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। यू वांट टू डू बिजनेस बट यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू टाइम विच इज रनिंग अवे, ठीक है। ये होता है भाई साहब। ओके, सो हाउ टू यूज टाइम, ये हो गया टाइम, सही टाइम पे सही धंधा होना चाहिए भाई साहब, ठीक है। मनी, कैसे मनी को इन्वेस्ट करना है, कैसे मनी को दुगना करना है। अगर समझ लो मैं एक फार्मर हूं और मेरे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है और यही टाइम है बीज खरीद कर जमीन में बोने की, मैं बोलता हूँ यार इसको पैसे को रख देते हैं, अभी बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या किया भाई साहब, मेरे मनी को ब्लॉक कर दिया। इस मनी को मुझे घुमाना चाहिए था बीज खरीद कर कल्टीवेशन करने के लिए, तो अगले 6-7 महीने में मैं इस पैसे का ही 4 गुना पैसा कर लेता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। तो आई हैव नॉट यूज्ड माय मनी, ठीक है। लेबर को हम कैसे लगाते हैं भाई साहब, ठीक है। लेबर मतलब जो वर्क फोर्स होता है। क्या सब कोई सब कुछ काम कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। तो आपको भाई साहब किसी बिजनेस को चलाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी किसी बिजनेस में लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है, जो लोगों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं लेबर, दैट इज कॉल्ड एज लेबर। एंड लैंड जो होता है हमारा, उसको हम इफेक्टिवली कैसे यूज करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड। वी यूज इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चर। कहां पे इकोनॉमिक्स यूज होता है भाई साहब? एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है। जहां पे भी मोल भाव होता है, जहां पे भी चीजों की खरीदरी और बेचते हैं, हम जिस चीजों को खरीदते बेचते हैं, जहां पे भी हम चीजों को, वो भाई साहब आपका हो जाएगा इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो क्या हम फसल खरीदते बेचते हैं? बिल्कुल भाई साहब। क्या हम क्रॉप्स खरीदते बेचते हैं? बिल्कुल। ट्रेड, धंधा, ठीक है, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड इन आवर डेली लाइफ, हर चीज में आपका इकोनॉमिक्स यूज होता है। जहां पे भी भाई साहब पैसों का लेन देन होता है वहां पे इकोनॉमिक्स एक्सटेंसिवली यूज होता है, ठीक है। इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस इकोनॉमिक्स होल्ड्स अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट में इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हाथ है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। ओके ओके ओके। इकोनॉमी,
Geographically speaking, the enterprises related to the production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called economy. ठीक है, देखो अगर हम ज्योग्राफी में बता रहे हैं, समझ लो ये एक आपका महाराष्ट्र रीजन है, इसमें क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, शुगर केन जैसे प्रोड्यूस हो रहा है, शुगर केन रिलेटेड चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ दे आर कंज्यूम्ड। देखो पहले तो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, तो जैसे एग्रीकल्चर लेवल पे गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। आपने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब तक पहुंच नहीं रहा है गुड्स, योर गुड्स आर नॉट रीचिंग द कम्युनिटी, तो ये भाई साहब आपका क्या रुका हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन रुका हुआ है, तो भी नहीं होगा। तो गुड्स जैसे जैसे प्रोड्यूस होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, सही चैनल से सही मार्केट तक गुड्स का पहुंचना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर समझ लो भाई साहब मुझे बेचना है फर्नीचर, तो क्या मैं इस मार्केट में जाऊंगा जहाँ पे लोग भाजी और मछली और मीट बेच रहे हैं, वुड दैट बी द राइट मार्केट टू सेल फर्नीचर? नो, ऑब्वियसली नॉट। आई विल हैव टू टेक अ शॉप एंड डेकोरेट इट एंड लोकेटेड इन अ मेन प्लेस, उस वहाँ पे जाकर मैं बेच सकता हूँ। अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें बेचनी है, लाइट वगैरह, लैंप वगैरह, तो क्या मैं जाकर वहाँ पे बेचूँ? नहीं। तो हर एक मार्केट का अलग अलग डायमेंशन होता है ज्योग्राफिकली, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इसी चीज़ को देखता है कि कहाँ तक, कौन से मार्केट तक मेरी चीज़ें पहुँचे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं समझो एक बहुत ही पिछड़े गांव के इलाके में चला गया, एकदम मतलब लोग जहाँ पे अंगूठा छाप, ठीक है, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं है, लोग सिर्फ फार्मिंग का काम करते हैं, कोई फिशरी का काम कर रहा है, वहां पे अगर मैंने एक कंप्यूटर्स की कंपनी डाली, मेरी कंपनी चलने वाली है? नहीं चलेगी भाई साहब। चल अगर बिक भी गई तो एक दो कंप्यूटर बिकेगा, अगर मैं 100 कंप्यूटर बना रहा हूं तो शायद एक दो कंप्यूटर बिक जाए, ठीक है। सो ये मेरे लिए राइट मार्केट नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं फेल हो रहा हूं, आई एम फेलिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, ठीक है। मतलब मैं जहां तक पहुंचना चाहिए वहां पे नहीं पहुंच रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू टेक माई प्रोडक्ट टू द राइट चैनल एंड टू द राइट डेस्टिनेशन, तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन, ये जो लोगों तक आप गुड्स और सर्विसेज को पहुंचा रहे हैं, इनका कंजम्पशन होना चाहिए। गुड्स मतलब ये जो गुड्स हैं आपके, मोबाइल एक गुड हो गया, बैग एक गुड हो गया, ठीक है, ये सारे आपके गुड्स हो गए। सर्विसेज क्या है? इंटरनेट का सर्विस, मोबाइल है आपके पास लेकिन इंटरनेट सर्विस नहीं है, कोई काम का होगा? वो नहीं होगा। आपके पास भाई साहब बल्ब है, फैन है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई काम का होगा? नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए सर्विसेज हो गई, ठीक है। मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन ये आपके लिए सर्विसेज हो गया, दीज आर सर्विसेज। जो पानी आपके घरों में आता है वो भी आपके लिए एक सर्विस हो गया, दीज आर सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज है। तो गुड्स और सर्विसेज आप तक पहुंचती हैं, ठीक है, दीज आर गुड्स एंड सर्विसेज विच एक्चुअली आर रीचिंग यू। टाइप्स, एक होता है भाई साहब आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और एक होता है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसा होता है? जो प्रॉफिट ड्रिवन इकोनॉमी होता है। जैसे आपका भाई साहब लेट्स से अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। मोटे मोटे तौर पे इस चीज को समझिए, समझ लीजिए आप सुबह उठ रहे हैं और किन किन चीजों को यूज कर रहे हैं। आपने टूथपेस्ट यूज किया, टूथब्रश यूज किया, साबुन यूज किया, ये सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपके कहाँ के हैं? किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाए रहेंगे, कोलगेट ने बनाया रहेगा या किसी मेडिमिक्स ने बनाया रहेगा, ऐसा है ना भाई साहब। शैम्पू आपने यूज किया तो पैंटीन ने बनाया रहेगा, अलग अलग कंपनीज ने बनाया है ये सब, ठीक है। आप कपड़े पहन रहे हैं वो भी प्राइवेट कंपनीज ने बनाए हैं, ठीक है। आपने भाई साहब खाना खाया, खाना में जो कुछ भी है, तेल हो गया, भाजी हो गया, ये सब प्राइवेट वेंडर से आप लेते हैं, ठीक है, ओके। अभी आप स्कूल के लिए निकल रहे हैं, ठीक है, स्कूल के लिए निकल रहे हैं, आपने समझ लो गवर्नमेंट का बस यूज किया, जो बस आती है ना, तो ये आप क्या यूज कर रहे हैं? गवर्नमेंट के सर्विस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप जंगल में से तो स्कूल जाएंगे नहीं, रास्ते में चलकर जाएंगे, ये रास्ता कौन बना रहा है? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट सर्विस को यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपके घर में जो खाना बन रहा है या जो पानी गर्म हो रहा है या जो आपके लाइट है वो कहाँ से आ रही है भाई साहब? इलेक्ट्रिसिटी जो कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे, जो आप ट्रेन से समझ लो कॉलेज जा रहे हैं, ट्रेन से अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो आप क्या यूज कर रहे हैं? गवर्नमेंट सर्विस यूज कर रहे हैं। तो आपको अगर देखोगे सुबह से लेकर रात तक जब आप सोने जाते हैं, जितनी भी चीजों को आपने यूज किया है, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू हैव यूज्ड आर बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया में है मिक्स्ड इकोनॉमी। आप जो रोड यूज कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट का, आप जो पानी यूज कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट का, आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट का, ठीक है। आप जो बस यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट का, आप जो भाई साहब ट्रेन यूज कर रहे हैं वो है गवर्नमेंट का, साबुन, तेल, चीनी, घी, ये सब जो कुछ भी आप यूज कर रहे हैं
वो है आपका भाई साहब प्राइवेट। ठीक है, तो आपका लाइफ जो है वो मिक्स्ड यूटिलाइजेशन पे है, इसीलिए आपका इकोनॉमी किस टाइप का इकोनॉमी हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी हम आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी है जैसे, ठीक है, इन लोग भाई साहब बिजनेस को बढ़ावा देते हैं और इनके हिसाब से सारा सब कुछ प्राइवेट हो जाना चाहिए। ठीक है, इनके हिसाब से सारा सब कुछ प्राइवेट हो जाना चाहिए, जिनको जितना कमाना है कमाए, ठीक है, जिनको जितना सर्विस प्रोवाइड करना है सर्विस प्रोवाइड करे। इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत कम कंट्रोल रहता है। आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 90% आपका प्राइवेट है और 10% आपका गवर्नमेंट है। पूरे कंट्री में या पूरे जीवन में जो आप चीजों को यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 90% आपका प्राइवेट है और 10% आपका गवर्नमेंट है। यहां तक कि रेलवेज भी प्राइवेट हो गए, यहां तक कि भाई साहब रोड कंस्ट्रक्शन भी आपका प्राइवेट हो गया है। ठीक है, यहां तक कि भाई साहब आपका पोस्ट ऑफिस भी प्राइवेट हो गया है। ज्यादा करके जो भी चीजें हैं वो प्राइवेट हो जाती हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज ओवरटेक कर लेती हैं। जैसे आप अगर देखोगे कई कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राइवेट हो गया है, रिलायंस ने ले लिया है, टाटा ने ले लिया है। ठीक है, तो ये प्राइवेट थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, थोड़ा थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ पे हो रहा है। इसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये इकोनॉमी के फायदे क्या हैं कि भाई साहब लोगों में कॉम्पिटिशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब मोबाइल नया नया लॉन्च हुआ था तब ये स्मार्टफोन नहीं था। ठीक है, ये स्मार्टफोन डब्बा वाला फोन था और उसमें आप किसी को फोन कर रहे होंगे ना तो 1 मिनट का भाई साहब 3 रुपए लगता था। ठीक है, 2 मिनट का 6 रुपए, 3 मिनट का 9 रुपए। आज की तारीख में आप देख रहे हो लोग आधे घंटे तक बात कर रहे हैं, 1 घंटे तक बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए, मतलब 1 घंटे तक अगर आपने बात किया तो 200 रुपए का बिल हो जाएगा। आज की तारीख में आप 300 रुपए में पूरा महीना चला सकते हैं, है ना, मोबाइल में। और सिर्फ कॉलिंग ही नहीं, आप उसमें भाई साहब इंटरनेट यूज भी कर रहे हैं, मैसेजेस भी भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इंटरनेट तो बाद में आया, उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये तो था 3 रुपए फॉर कॉलिंग। आपको अगर किसी ने कॉल किया और वो कॉल आपने उठाया तो उसके लिए भी आपको 2 रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, रिसीविंग कॉल भी चार्जेबल था। ठीक है, जब मोबाइल लॉन्च हुआ था तब। क्यों? क्योंकि एक दो कंपनी ही थी तो कंपटीशन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे भाई साहब सारी कंपनीज आ गई, इसमें बहुत सारी कंपनीज आ गई। वोडाफोन भी आ गया भाई साहब, आपका एयरटेल भी आ गया, जियो भी आ गया, सब आ गया भाई साहब। तो क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन जब बढ़ गया तो सबने अपने दाम कम करने चालू कर दिए, सबने अपने दाम कम करने चालू कर दिए। तो फायदा किसका हुआ, हमारा। ठीक है, आज की तारीख में एक 300 रुपए के प्लान में आप डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप भाई साहब कॉलिंग भी अनलिमिटेड करते हैं, अनलिमिटेड मैसेजेस भी हैं आपके, सारा सब कुछ अनलिमिटेड है ऑलमोस्ट। ठीक है, सो वो सारा, अगर मैं बोलूं कि आज आप जिस तरह से फोन को यूज करते हैं, अगर यही इस तरीके से आपने 20 साल पहले यूज किया होता तो आपका मिनिमम बिलिंग नहीं करके फोन का जो बिलिंग होता था वो 8 से 10 हजार रुपए महीने का होता था। कम से कम 8-10 हजार रुपए आप महीने में फोन के लिए भरते थे। ठीक है, जो आज आप बड़े आसानी से 300 रुपए में निपटा रहे हैं। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से हुआ है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं और ये प्राइवेट प्लेयर्स आपके चीजों को आसान बना रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर है कंपटीशन। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारा क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। एक और दूसरे तरीके का इकोनॉमी होता है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी। जैसे आप कभी सुनेंगे नहीं कि चाइना में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ है। अगर आप समझो अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में कौन कौन से बिजनेसमैन है, जैसे जेफ बेजोस अमेजन का ओनर है भाई साहब, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का ओनर है भाई साहब, सब जानते हैं। ठीक है, दीज आर बिलियनियर्स इनफैक्ट। ठीक है, और कौन हो गया भाई साहब, बिल गेट्स हो गया भाई साहब। ठीक है, वॉरेन बफेट हो गए। आप देखोगे ज्यादा करके जितने भी बिजनेसमैन है ऑल आर फ्रॉम अमेरिका। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तुमको पैसा कमाना है कमाओ, कोई रोक टोक नहीं है। जितना आपको ये कौन सा टाइम है रे, जितना आपको पैसा कमाना है कमाओ। दिस इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आर वी गेटिंग दिस पीपल? आपको जितना भी पैसा कमाना हो कमाओ, आप यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, इसीलिए ज्यादा करके बिजनेसमैन आपको वहां से मिलेंगे। चाइना में आपका कोई बिजनेसमैन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे है आपका कम्युनिस्ट इकोनॉमी। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट आपकी इंडस्ट्रीज चला रही है, रेलवेज चला रही है, प्राइवेट कंपनीज चला रही है, सब कुछ गवर्नमेंट देख रही है। सिर्फ 10% जो है तो प्राइवेट होगा। समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? मतलब मोटे मोटे तौर पे बहुत कम कंट्रीब्यूशन प्राइवेट कंपनीज का होगा। गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट ही नहीं करती है। ठीक है, तो इस तरीके का एनवायरनमेंट है। कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट एंड मिक्स्ड। हमारा कौन सा है भाई साहब? मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिलहाल तो मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे यूएस में है
और कम्युनिस्ट इकोनॉमी जैसे आपका चाइना में है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। सो व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आपका प्राइवेटाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हो जाना, ट्रांसपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन हो जाना, रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन हो जाना। आज तक तो गवर्नमेंट के पास रेलवेज है, अगर इसका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है तो ये भी प्राइवेट हो जाएगा, मतलब हम कैपिटलिस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, वी आर बेसिकली बिकमिंग कैपिटलिस्ट। मेन एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस टाइप के सिचुएशन में या इस टाइप के इकोनॉमी में मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट बनाओ भाई साहब, जितना प्रॉफिट आप बना सको। और प्रॉफिट आप ऐसे ही नहीं बना सकते। ठीक है, प्रॉफिट बनाने के लिए आपको कस्टमर्स को हैप्पी रखना पड़ेगा और कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाकर आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि कस्टमर के पास आज की तारीख में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर कस्टमर को भाई साहब एचपी का लैपटॉप नहीं पसंद आया तो लेनोवो का लेगा, लेनोवो का नहीं पसंद आया तो भाई साहब किसी और कंपनी का लेगा। बहुत सारे मोबाइल आप देख लो भाई साहब, सैमसंग का नहीं पसंद आया वीवो का लेगा, ये है वो है। सारे कंपनीज आपको भाई साहब कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट में कंपटीशन काफी सारा है और इस कंपटीशन को सर्वाइव करने के लिए आपको बहुत उम्दे तौर पर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका अर्न, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन लक्ष्य है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाएगा, ऑब्वियसली द कस्टमर सर्विस इज गोइंग टू इंप्रूव। ठीक है, ये हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अडॉप्टेड बाय जर्मनी, जर्मनी ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट किया है। जापान में भी पूरा क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और यूएस में भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। तो दीज आर कंट्रीज विच हैव इकोनॉमीज विच सपोर्ट बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, वेलफेयर को नहीं, बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इनके हिसाब से अगर आपने बिजनेस को सपोर्ट किया और अगर बिजनेस अच्छा चला, बिजनेसमैन लोगों का अच्छा हुआ, तो ऑब्वियसली कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि सर्विस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो जर्मनी, जापान एंड यूएसए आर बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अभी हम आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? दिस मीन द वर्ड द मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी एज ए होल, दैट इज गवर्नमेंट्स कंट्रोल। तो आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? ऑलमोस्ट 90% प्राइवेट और सिर्फ 10% इक्का दुक्का वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? 90% गवर्नमेंट और ऑलमोस्ट 10% इक्का दुक्का वो आपका प्राइवेट के पास रहेगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली मेन एम इज टू अचीव सोशल वेलफेयर। यहां पे भाई साहब वेलफेयर है मेन एम, प्रॉफिट नहीं। कैपिटलिस्ट वाले क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब प्रॉफिट को मेन एम रखो, अपने आप सोशल लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, है ना। अगर कंपनीज को प्रॉफिट कमाना है तो उसका मतलब उसको अच्छी सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस देनी है तो ऑटोमेटिकली आपका सोशल लाइफ बड़ा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, है ना। यहां पे आपका भाई साहब सोशल वेलफेयर को ओरिएंट करे, क्योंकि देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपके सोशल वेलफेयर को देखती है। समझ लो अभी आप यहां से वीटी जा रहे हो, आप ओला लेकर जा रहे हो, आपका नहीं करके 1,500-2 हज़ार का बिल आ जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट बोलती है जाओ मेरे ट्रेन से जाओ, 15 रुपए में पहुंच जाओगे, है ना, 15 रुपए में पहुंच जाओगे। ट्रेन में काफी भीड़ होगी, ये अलग बात है, ट्रेन में थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस आपको होगा क्योंकि वो रुकते हुए जाएगी, ये अलग बात है, ठीक है। लेकिन यू विल रीच एट अ फेयर प्राइस, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन लक्ष्य क्या है, आपको वेलफेयर देना, ठीक है, आपके पैसे भी बचें और आप अपने गंतव्य तक पहुंच भी जाएं, तो ये है वेलफेयर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो इस तरीके की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा है, मतलब गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 90% चीजों को कंट्रोल करती है और बाकी के 10% है वो इक्के दुक्के आपके प्राइवेट ओनर्स के पास होता है। इस टाइप की इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। कंट्रीज लाइक चाइना स्टिल फॉलो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमी। चाइना और रशिया में इस टाइप का सोशलिस्ट इकोनॉमी चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। नाउ वी कम टू इंडिया विच इज बेसिकली अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स का ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज है, 50% प्राइवेट, 50% आपका भाई साहब पब्लिक, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे सारे दिन में जिन चीजों को आपने यूज किया है उसमें अप्रोक्सीमेटली आपको 50% चीजें गवर्नमेंट से प्रोवाइड हो रही हैं एंड 50% ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट वेंडर्स। साबुन, तेल, खाने पीने की चीजें, गारमेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं भाई साहब आपके प्राइवेट वेंडर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपका इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ठीक है, आपके भाई साहब बस सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, ये सब आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये सब आपके भाई साहब गवर्नमेंट। तो को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों भी पैरेलली चल रही हैं। अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट है मोटिव किसका, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। सोशल वेलफेयर किसका मोटिव है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर है मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉफिट भी और सोशल वेलफेयर भी, तो दैट इज बेसिकली अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। दिस इज अडॉप्टेड बाय इंडिया। इंडिया हैज बेसिकली गॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया, स्वीडन, यूके, इन सब जगहों पे, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन,
यहाँ पे भाई साहब मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमी, अभी हम बात करेंगे भाई साहब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, जैसे ही भाई साहब पॉलिटिकल माहौल में उथल पुथल होता है, चीजों के दाम ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। आपने देखा रहेगा इलेक्शन के टाइम पे या इलेक्शन के बाद, ये पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मतलब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आपका ठीक ठाक होना चाहिए। आज एक सरकार चुनी गई, कल वो गिर गई, ठीक है, फिर से दूसरी सरकार आई, फिर वो भी भाई साहब कुछ दिनों बाद गिर गई। ऐसा बहुत बार इंडिया में हुआ है और इससे क्या होता है, तनाव होता है। अरे भाई साहब ये नया सरकार आएगा, अभी पता नहीं ये कौन सी बिजनेस पॉलिसीज लाएंगी, हमारी जो चीजें हैं वो बिकेंगी कि नहीं, ये सब टेंशन में आप रहेंगे। तो एटलीस्ट पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर आपका अगर स्टेबल रहता है तो धंधा भी आपका स्टेबल तरीके से चल सकता है, ठीक है। दैट टू कैन बी मैनेज्ड ऑन अ स्टेबल फ्रंट, ठीक है। धंधा भी आप भाई साहब स्टेबल तरीके से चला सकते हैं। तो आपका पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होता है। ग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एरिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आप किस टाइप के ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं और क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, एग्रीकल्चर आपका होता है या नहीं, ठीक है। आपके भाई साहब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि नहीं, आपका भाई साहब जो रोड की ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है वो है कि नहीं। जिन जगहों पे अच्छा रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी रहेगा उन जगहों का ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वहां तक चीजें पहुंचेंगी भी और वहां से प्रोड्यूस की गई चीजें भी मार्केट तक पहुंचेंगी, मार्केट से भी ये चीजें यहाँ पे पहुंचेंगी और यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी भाई साहब मार्केट तक पहुंचेगा। तो जितना धंधा बढ़ेगा लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, ठीक है। सो ज्योग्राफिकल एरिया, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन क्या है भाई साहब आपका, ठीक है, ऑक्यूपेशंस क्या है लोगों के जनरली, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या था देखो, और ये क्यों हुआ, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एनी आइडिया, एनीवन? ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? हाँ क्या क्या क्या? नहीं नहीं, ट्रेडिंग नहीं। किस कंपनी का घड़ी है ये? फास्ट्रैक का घड़ी है। फास्ट्रैक का घड़ी पहने रखा है इन्होंने, क्या ये इंडियन कंपनी है? हाँ, टाटा का है, फास्ट्रैक टाटा का है, ओके। समझ लीजिए इन्होंने अगर फॉसिल का एक घड़ी डाला रहता तो क्या वो इंडियन कंपनी है? ओके, नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से, इसको ऐसे समझो, ठीक है। आपने अगर आज एक नाइकी का शू पहना रहेगा, क्या पहन सकते हैं आप? जाकर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं या वाकई में जाकर दुकान से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बोथ वेज यू कैन डू इट, ठीक है, ओके। इस नाइकी के शू का प्रोडक्शन या एक्चुअल नाइकी का प्रोडक्शन हाउस कहाँ पे है? यूएस में। तो क्या आप यूएस में जाकर उस जूते को खरीद रहे हैं? नहीं, इट इज़ वेरी मच अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। नाइकी के लिए इंडियन मार्केट ने ऑथराइजेशन दे दिया, आप भाई साहब यहाँ पे धंधा कीजिए। ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था। बहुत ही कम कंपनीज को इंडिया में एक्सेस मिलता था, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ, 1990 में इंडिया की हालत बहुत ख़राब हो गई फाइनेंशियली। अप्रॉक्सीमेटली जो आज की तारीख में पाकिस्तान की हालत है वही हालत इंडिया की हो गई। मतलब इंडिया गई वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए, वर्ल्ड बैंक ने बोला देखिए आप इतना लोन पहले ही ले चुके हैं, फिर से आपने अगर लोन लिया तो हमको लोन देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप लोन को चुकता नहीं कर पाएंगे। आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है फिलहाल आपके देश की, ये भाई साहब सुधरने नहीं वाली और आप और ज़्यादा डेब्ट ट्रैप में फंसते जाएंगे। तो आप इससे आप उभर नहीं पाएंगे, इस लोन से आप नहीं उभर पाएंगे, इसको चुकता भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे पास एक सोल्यूशन है, आप अपने कंट्री को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, आप बाहर की कंपनीज को आने दीजिए, आपकी कंपनीज भी बाहर जाएंगी, क्योंकि आपने दूसरे देशों को धंधे के लिए बंद कर रखा है, दूसरे देशों ने भी आपके प्रोडक्ट के लिए धंधे को बंद कर रखा है। आप अपने मार्केट्स को उनके लिए खोल दीजिए, वो भी अपने मार्केट्स आपके लिए खोल देंगे, ठीक है। ये बोला। अभी पहले हमको ये लगा कि यार दूसरे देश यहाँ पे मार्केट खोलेंगे क्या? देखिए पेप्सी एक यूएस कंपनी है, लेकिन कोई यूएस का बंदा अगर आपको पेप्सी नहीं बेच रहा है ना, वो होगा किसी इंडियन स्टॉल में ही, और पेप्सी का जो प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे भी इंडियंस ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो पेप्सी के यूनिट्स होंगे जहाँ पे पेप्सी प्रोड्यूस हो रहा होगा वहाँ पे भी इंडियंस ही काम कर रहे हैं। तो फॉरेन कंपनीज का यहाँ पे आना मतलब ये नहीं होता है कि हमारे लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सैमसंग जो है वो एक भाई साहब आउटसाइड कंपनी है, लेकिन उसको बेचता तो इंडियन ही है ना, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बिजनेस बढ़ा, लोगों के लाइफस्टाइल्स बढ़ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट? ओपनिंग योर मार्केट टू द एंटायर वर्ल्ड एट द सेम टाइम allowing the other companies to come to your market and
ऑब्वियसली अगर आप बाहरी देशों को अलाउ करेंगे आपके यहाँ बिजनेस करने के लिए, तो आपको भी बाहरी देश अलाउ करेंगे अपने बिजनेस के लिए। आज की तारीख में इंडियन प्रोडक्ट्स भाई साहब बहुत दूर दूर तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हमने उन कंट्रीज को अलाउ किया है। कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं प्रोडक्शन वाइज। तो इसको कमी को पूरा करने के लिए अगर हम किसी देश से इंपोर्ट करा रहे हैं और नई चीज दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हर्ज क्या है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन हुआ भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी, मतलब किसी भी धंधे के लिए बॉर्डर की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बैठे बैठाए यहाँ पे भाई साहब चीजों को बेच सकते हैं अमेरिका में, ठीक है। बॉर्डरलेस इकोनॉमी। बॉर्डर कब आता है? जब देश की सुरक्षा का मामला हो, लेकिन बिजनेस का मामला हो तो कोई बॉर्डर नहीं आता है, ठीक है। इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी फ्लो फ्रीली अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्री, ठीक है। तो आपका भाई साहब नेचुरल रिसोर्सेज प्लस प्रॉफिट प्लस सर्विसेज प्लस कैपिटल प्लस लेबर प्लस टेक्नोलॉजी, इनका फ्री फ्लो आदान प्रदान हो रहा है अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज, अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। देयर इज फ्री ट्रेड एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर सेट असाइड। तो एकदम फ्रीली ट्रेड होता है और जितने भी आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रेड को लेकर उसको हम भाई साहब रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से सबको फायदा होता है। एवरी कंट्री इज बेसिकली बेनिफिटिंग फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन दैट हैज हैपेंड। तो आफ्टर 1990 देयर वाज सिवियर ग्लोबलाइजेशन दैट हैपेंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और इससे बहुत कमजोर कंट्रीज की आर्थिक परिस्थितियां सुधर गई, स्पेशली इंडिया की, ठीक है। इंडिया की आर्थिक परिस्थिति आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन की वजह से सुधरी है। एनी क्वेश्चंस यू हैव पीपल? अब नो, बहुत बढ़िया। फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी टू डिसाइड द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो हमको देखना है कि भाई साहब इंडिया में कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत हाई वैल्यू रखती है वेस्टर्न मार्केट्स में, तो उसको हम कितना प्रोड्यूस करें और कैसे प्रोड्यूस करें। जैसे कंप्यूटर्स में हम बहुत अच्छे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हम स्पाइसेस में बहुत अच्छे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं दूसरे दूसरे कंट्रीज में, ठीक है। ओके, सो टू डिसाइड द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो कौन सा प्रोडक्ट है और कितने क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस होना चाहिए। टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके हम प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करें, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। ओके, टू एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो हम यहाँ पे नेशनल इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई साहब? एज पर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। नेशनल इनकम को हमको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एज पर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, क्लियर है। पूरा जो देश कमा रहा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? एज पर नेशनल, एज पर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। मतलब आप अगर कम पैसा कमा रहे हैं तो आप कम ही कमाइए, ज्यादा मत कमाइए, जितना कमाना है कमाइए, ठीक है। लीगल तरीके से आप पे धंधे के लिए कोई बंदिश नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। ओके, टू मेक अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। हमारे जो इकोनॉमिक नीड्स हैं वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एक टाइम था भाई साहब जब, अगर समझो ऐसे समझो कि जैसे मेरे पापा, उन्होंने रेलवेज में नौकरी की और करीबन 40 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना घर बनाया, फिर गाड़ी ली, ठीक है। आज की तारीख में तो इसका मतलब इतना सब धीरे धीरे पैसे जोड़े उन्होंने, और पैसे जोड़ने के बाद अपना घर बनाया, फिर भाई साहब गाड़ी लिया। लेकिन आज की तारीख में कोई 25 साल का इंसान भी होम लोन लेकर अपना घर बना सकता है, कार लोन लेकर अपना कार ले सकता है। तो वो सारी चीजें जो आपको 50 साल के बाद आपको मिलती थी वो आज 25 साल में अवेलेबल हैं। हाँ, थोड़ा सा पैसा आपका ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप जवान उम्र में ही अपने घर में रह पा रहे हैं, अपनी गाड़ी ले पा रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छा हुआ है ना। तो इकोनॉमिक नीड्स आर बेसिकली चेंजिंग। इकोनॉमी में जो नीड्स हैं लोगों के वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, ठीक है। पहले के जमाने में लोग धीरे धीरे पैसा जोड़ते थे और फिर जब एक फाइनल अमाउंट होता था तो उससे घर और अपने सपनों को पूरा करते थे। आज की तारीख में हर चीज को आप लोन से सपनों को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। घर हो गया, गाड़ी हो गया। सो दिस इज बेसिकली आपके इकोनॉमिक नीड्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं और फ्यूचर में भी चेंज होते जाएंगे कॉन्स्टेंटली। योर इकोनॉमिक नीड्स आर गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर एज वेल, ठीक है। सो धीरे धीरे भाई साहब ये सब चेंज होता जाएगा। टू डिसाइड फॉर whom द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, किसके लिए ये गुड्स प्रोड्यूस होगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप भाई साहब किसी एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया में गए हैं जहां पे सिर्फ मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। लोग गाँव ही काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशरी हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, ये सब काम करते हैं। और आपने वहां पे जाकर भाई साहब एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल लिया, आपके माल बिकने वाले हैं नहीं, ऑब्वियसली भाई साहब वहां पे लोग लेंगे नहीं।
तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किस सेगमेंट के लिए आपको कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना है और उस सेगमेंट तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड कि किस क्वांटिटी में आपके गुड्स की डिमांड होगी, टू डिसाइड फॉर whom the goods will be produced, ठीक है। Choose the alternative word. The word economics comes from the Greek word oikonomia, which means work, time, family management, ठीक है, okay. In the book Wealth of Nations, which was published in 1776, एडम स्मिथ को बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है और इनका जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। लायनल रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है उसको हम बोलते हैं स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। तो डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज साइंस ऑफ, यहां पे हो जाएगा वेल्थ, एंड दैट इज नोन एज वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। दैट इज one of the factors that affect an economy. Population, time, money. Dash is one of the factors that affects economy. Population is one of the factors that affects an economy. Economics is an important dash subject, geographical, social और scientific. क्या हो जाएगा भाई साहब? This will be geographical subject, ठीक है। World economy is a dash economy. Advanced economy, private economy, borderless, ठीक है। Borderless economy हो जाएगी ये, okay. Match the column यहाँ पे भाई साहब क्या क्या है? यूएसए मिक्स्ड इकोनॉमी, रशिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यूके सोशलिस्ट इकोनॉमी और ये हो गया आपका सोशल इकोनॉमी। यूएसए क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, रशिया सोशलिस्ट इकोनॉमी, यूके मिक्स्ड इकोनॉमी। यूएसए के साथ और कौन कौन से कंट्रीज हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? जर्मनी, जापान, यूएसए, दीज आर कंट्रीज विच आर हैविंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। रशिया के साथ कौन है? चाइना, विच इज हैविंग बेसिकली सोशलिस्ट इकोनॉमी। यूके के साथ कौन है भाई साहब? इंडिया, विच इज हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। Okay. Answer in one sentence to which of the economic factor is the management of individual or family finances related? Individual or family management is related to the economic factor of income and expenditure, ठीक है। Income और expenditure से भाई साहब ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। Which balance does an economy strive to create? Balance between economy में कौन सा balance होता है? Profit and welfare, इसको ये balance करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। So an economy rigorously strives to create a balance between limited resources and ultimate needs. तो आपके resources जो हैं वो limited हैं और आपके needs जो हैं वो infinite हैं, ठीक है। Infinite needs को कैसे हम limited resources से fulfill करें, यही economic का game है, ठीक है। Economics का game होगा। Okay. Name the following. He is known as the father of economics, Adam Smith, ठीक है। It will be Adam Smith. Under this, there is free trade and all restrictions on the investments are set aside. Globalization ना भाई साहब, ठीक है। Globalization हो गया ये, okay. Give geographical reasons. On the basis of economies, we can divide countries into 3 groups, ठीक है। तो आपके पूरे countries को आप 3 groups में divide कर सकते हैं, capitalist, socialist and mixed. Capitalist में किसका किसका example दे दोगे भाई साहब? USA, जापान and जर्मनी। मिक्स्ड में इंडिया एंड यूके और आपके भाई साहब सोशलिस्ट में रशिया एंड चाइना, ठीक है। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। इट्स मेन गोल इज टू अर्न प्रॉफिट्स, एग्जांपल जर्मनी, जापान एंड यूएसए। सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू गवर्नमेंट, ज्यादा करके आपका गवर्नमेंट का ही कंट्रोल रहेगा। इट्स मेन गोल इज टू अर्न सोशल वेलफेयर, ठीक है। Mixed economy, in this type of economy, a coexistence of private and public sectors is observed, ठीक है। Main goal is to strike a balance between profit and social welfare. Example India, Sweden and UK, ठीक है। In this way we can divide countries into 3 groups on the basis of economics, ठीक है। 3 groups हो गए, socialist, capitalist and mixed. Socialist में क्या हो जाएगा? Welfare oriented है और government के control में है, ठीक है। Maximum sources of production are under government control and the main objective is welfare of the people. Capitalist economy, और इसके examples क्या क्या हो जाएंगे? China and Russia. Capitalist economy में the main sources of production are owned by private individuals. The purpose here is to earn maximum amount of profit. The countries which are strongly following capitalist type of an economy are basically US and Japan and Germany. Then we have mixed economy as we have been seen in India, ठीक है। So इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? The main sources of production are equally divided between private and public enterprises. So there will be a significant contribution from private individuals and there will be a significant contribution of goods and services from
पब्लिक इंडिविजुअल्स, दैट इज गवर्नमेंट एज वेल। तो यहां पे आपका दोनों ही उद्देश्य है, प्रॉफिट प्लस वेलफेयर, ठीक है। लिस्ट डाउन द फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, क्या क्या भाई साहब हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के फंक्शन। एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट इकोनॉमी, however the main functions of each and every economy are more or less similar. An economy tries to ensure a balance between limited resources and unlimited needs. हम सबके needs क्या है भाई साहब, अनलिमिटेड है, लेकिन जो resources हमारे पास अवेलेबल हैं they are basically limited, ठीक है। तो this strikes a balance between limited resources and unlimited needs, ठीक है। Below are some of the main functions of an economy. To decide the product and quantity of its production, तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, और कितने क्वांटिटी में आपको ये प्रोड्यूस करना है, आपके देश की रिक्वायरमेंट कितनी है, ठीक है। तो डिसाइड द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके। टू एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एज पर द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। तो जो भी नेशनल इनकम होगा उसका एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एज पर द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जैसे देखो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के हिसाब से नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बॉम्बे में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है कि किसी गांव में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है? बॉम्बे में, ठीक है। यहां पे आपको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा, यहां पे आपको भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है? गांव खेड़े में या किसी ग्रामीण जगह पे आपको इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना पड़ेगा, इतना रेंट नहीं देना पड़ेगा, क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, नीड ज्यादा नहीं है, यहाँ पे चीजों को अवेलेबल कराना मुश्किल है, यहाँ पे चीजों को अवेलेबल कराना एक चैलेंज है, ठीक है। ओके, अभी इस चीज को समझो। तो क्या ये नाइंसाफी होगी कि एक बॉम्बे के मुंबई में जो रहता है उसके ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है, ज्यादा खर्चा आ रहा है उन्हीं चीजों का जो एक ग्रामीण जगह पे रहकर एक इंसान का कम खर्चा आ रहा है? तो क्या ये नाइंसाफी है? देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना इकोनॉमिक जस्टिस की, तो क्या ये नाइंसाफी है या इंसाफी है? ये इंसाफी है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे ये बंदा रह रहा है गांव खेड़े में, वहां पे उतना इनकम नहीं है, ठीक है। ये जिस जगह पे रह रहा है बॉम्बे में, मुंबई में, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे कोई भी काम करके आप पैसे कमा सकते हैं, वहां पे वो नहीं कर सकता, ठीक है। वहां पे उनके इनकम के रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो यहाँ पे इनकम ज्यादा है, इसीलिए आपको हर चीज का दाम भी ज्यादा देना पड़ता है। वहां पे इनकम के रिसोर्सेज कम है, इसलिए आपके जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उसके लिए कम पैसा देना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। तो नेशनल इनकम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, नेशनल इनकम इस तरह से प्लेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है। टू मेक अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर। तो अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स, जैसे देखो फसल होती है, क्रॉप्स होते हैं, उन क्रॉप्स को हम पूरे साल भर उपभोग करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी साल फसल खराब हो गई या किसी साल बाढ़ आ गया या कोई बहुत भयंकर सूखा पड़ गया, तब क्या करेंगे? तो इसीलिए गवर्नमेंट को हर समय फूड को स्टॉक करके रखना पड़ेगा इन केस समथिंग रॉन्ग गोस, ठीक है, समथिंग हैपेंस रॉन्ग, ठीक है, फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर। टू डिसाइड फॉर हुम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, तो किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टू डिसाइड फॉर हुम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, ये इकोनॉमी है, किसके लिए हम कौन सा प्रोडक्शन करेंगे, कौन सा गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, दिस इज बेसिकली वी आर पूरे चैप्टर को अगर हम देखें, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इकोनॉमिक्स इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इकोनॉमिक्स इज फ्रॉम ओइकोनोमिया विच मीन्स फैमिली मैनेजमेंट। तो ग्रीक वर्ड है बेसिकली ओइकोनोमिया एंड इट मीन्स फैमिली मैनेजमेंट। तो फैमिली मैनेजमेंट को करते करते धीरे धीरे हम भाई साहब पहले इंडिविजुअल मैनेजमेंट, फिर फैमिली मैनेजमेंट, फिर रीजनल मैनेजमेंट, फिर स्टेट लेवल मैनेजमेंट, फिर कंट्री लेवल मैनेजमेंट एंड देन एट वर्ल्ड लेवल मैनेजमेंट। तो दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। Geographically speaking, the enterprises related to production, distribution and consumption of goods and services in a specific region is called an economy, ठीक है। तो आपके गुड्स का प्रोडक्शन होना, डिस्ट्रीब्यूशन होना और कंजम्पशन होना, ठीक है। गुड्स अगर बनी है तो वो प्रोड्यूस हुई है और वो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचनी चाहिए ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। एक बार डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उनका कंजम्पशन होना चाहिए। आपने भाई साहब कोई घर में अगर चीज ला के रखा और उसको यूज ही नहीं किया है तो आपने उसका कंजम्पशन किया ही नहीं है, फालतू में पैसे वेस्ट किए, ठीक है। सो ज्योग्राफिकली स्पीकिंग द एंटरप्राइजेस रिलेटेड टू
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन में इन तीनों चीजों का होना, इसको हम बोलते हैं इज एन इकोनॉमी। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। एडम स्मिथ की भाषा में क्या है, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है, ठीक है। तो इन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1776 and he is known as the father of economics. So what he has said is he has defined economics as the science of wealth. लायल रॉबिन्स ने स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है, जहां पे एंड्स और मीन्स के बीच में हम कैसे स्केर्स रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है, टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स, ठीक है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी भाई साहब क्या क्या हो गया, नेचर, एम एंड कंट्रीज दैट अडॉप्टेड द इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेचर क्या है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। प्राइवेट इंडिविजुअल्स मतलब प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, रेलवेज प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, ठीक है, आपके ट्रांसपोर्ट प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, रोड बिल्डिंग प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है, ये सारा सब कुछ ऑलमोस्ट प्राइवेट कंपनीज के हाथों में है, ठीक है। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज प्राइमरली इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स। सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब क्या होता है, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बिलोंग टू द सोसाइटी एज अ होल, दैट इज गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है प्राइमरली, ठीक है। को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों भी साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं, पैरेलली एग्जिस्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल है, पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, और प्राइवेट दोनों भी 50-50। यहां पे भाई साहब अगर आप देखने जाओगे प्राइवेट 80 या प्राइवेट बोल सकते हैं हम 90% है, और 10% शायद गवर्नमेंट है। डिफेंस वगैरह हम प्राइवेट में नहीं दे सकते, तो हमको गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो 90% इज प्राइवेट एंड 10% इज गवर्नमेंट। यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 90% इज गवर्नमेंट एंड 10% इज प्राइवेट, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% गवर्नमेंट एंड 50% प्राइवेट, ऐसा रेशियो है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। एम इसका क्या है भाई साहब, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, बिकॉज प्राइवेट कंपनीज अगर सारा कंट्रोल कर रही हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये सारा अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इफ इट इज प्राइमरली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, ऑब्वियसली व्हाट वुड बी देयर मेन मोटिव, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी बिना पैसे के काम थोड़ी करेगा, ठीक है, अगर कोई धंधा हो रहा होगा तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो क्या ये प्रॉफिट सही है? यस सही है, क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो ही भाई साहब धंधा बढ़ेगा, ठीक है, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, टू अचीव सोशल वेलफेयर। सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या होता है भाई साहब, टू अचीव सोशल वेलफेयर, क्योंकि ये गवर्नमेंट इकोनॉमी है। गवर्नमेंट क्या चाहती है, प्राइमरली सोशल वेलफेयर, व्हाट गवर्नमेंट नीड्स इज सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर इज में, ठीक है, ओके। कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड द इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किन किन लोगों ने अडॉप्ट किया है, जापान, जर्मनी एंड यूएसए, दे हैव अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी किन किन लोगों ने किया है भाई साहब, चाइना एंड रशिया। मिक्स्ड इकोनॉमी किन किन लोगों ने किया हुआ है, इंडिया, स्वीडन एंड द यूके, ठीक है। ये आपका अलग अलग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, एंड डिफरेंट नेशंस प्रेफर टू अडॉप्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज टू रन देयर नेशंस, ठीक है। कहीं पे भाई साहब गवर्नमेंट कंट्रोल 90% है, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल 90% है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ एग्जांपल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। कहीं पे गवर्नमेंट कंट्रोल ओनली 10% है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है तो गवर्नमेंट सिर्फ 10% ही कंट्रोल कर रहा है, बाकी सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। द मोटिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्रॉफिट, द मोटिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज वेलफेयर ऑफ पीपल। आर वी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एन इकोनॉमी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी मतलब क्या होता है कि भाई साहब अगर कोई देश ऐसा है जिसके अंदरूनी मामले वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, समझ में आ रहा है? इंडिया के जितने भी अंदरूनी मामले हैं वो इंडिया अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं जो वीक हैं और जो दूसरे पावरफुल देशों पे डिपेंडेंट हैं, तो इनके अंदरूनी मामले ये खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर हैंडल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ठीक है, दीज आर हैंडल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, तो इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। तो अगर कोई एक ऐसा देश है जो वो पूरा पूरा अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम बोलेंगे भाई साहब पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, ठीक है। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कहीं पे अगर इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाना है तो एक पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होनी चाहिए। पीपल शुड बी फ्री, ठीक है, अ कंट्री शुड बी फ्री टू मेक इट्स डिसीजंस, अ कंट्री शुड बी सॉवरेन, मतलब उसका सारा डिसीजन किसी भी हिसाब से बाहरी चीजों से या दूसरे कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। ज्योग्राफिकल एरिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है और जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इस पे भाई साहब आपका इकोनॉमी का मापदंड होता है।
पॉपुलेशन कितना है। जैसे बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं जो इंडिया के बाहर हैं, दूसरे कंट्रीज में हैं, उनको लगता है कि इंडिया में पॉपुलेशन, हम जैसे बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में फेल नहीं होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई खरीदार मिल ही जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। एनी प्रोडक्ट दैट यू लॉन्च यू विल ऑलवेज फाइंड अ बायर इन इंडिया बिकॉज द बेस ऑफ द पीपल इज ह्यूज। इट इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो पॉपुलेशन होता है भाई साहब। ऑक्यूपेशंस, लोगों के प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या क्या है, तो जैसा जैसा ऑक्यूपेशन होगा वैसा वैसा चीजें बिकेंगी भाई साहब, ठीक है। अगर आप किसी ऑफिस एरिया में कंप्यूटर्स का एक लैब डाल रहे हैं तो चलेगा वो, है ना, कंप्यूटर्स का एक इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं तो वो चलेगा क्योंकि लोग सीखेंगे उन चीजों को, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, बिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी के हिसाब से बॉर्डरलेस है, डिफेंस के हिसाब से नहीं, सिक्योरिटी के हिसाब से बॉर्डरलेस नहीं है। सारे कंट्रीज में भाई साहब बॉर्डर होता है और उस बॉर्डर पे फोर्स तैनात होती है जो उस कंट्री को प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन इकोनॉमिक के हिसाब से सारे कंट्रीज बॉर्डरलेस हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी इन विच नेचुरल रिसोर्सेज, प्रॉफिट, ठीक है, सर्विसेज, कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी फ्लो फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ कंट्री। तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, प्रॉफिट हो गए, सर्विसेज हो गए, कैपिटल हो गए, लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ऑल दीज flow freely across the borders of countries. They flow very freely across the borders. क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, मतलब इकोनॉमी के टर्म्स में इट इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी, ठीक है। अलाइनिंग द कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, देयर इज फ्री ट्रेड एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर सेट असाइड, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में फ्री ट्रेड हो जाती है। फ्री ट्रेड मतलब जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं ट्रेड को लेकर, पहले के जमाने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, वो सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी नहीं रहेंगे, ठीक है। दीज रिस्ट्रिक्शंस विल नॉट बी देयर, तो फ्री ट्रेड विल बी अलाउड, ठीक है। देयर इज फ्री ट्रेड एंड ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर सेट असाइड। तो जितने भी आपके रिस्ट्रिक्शंस होंगे विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट्स दे विल बी सेट असाइड, फ्री ट्रेड होगा। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम बहुत बढ़िया ना भाई साहब। टू डिसाइड द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, टू मिनिमाइज, तो आपके भाई साहब फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, इकोनॉमी के फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे। टू डिसाइड द प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, पहले तो प्रोडक्ट को डिसाइड किया जाएगा, इस प्रोडक्ट की भाई साहब इंडिया में कोई कीमत है, कोई भाई साहब मांग है कि नहीं, और अगर है तो कितने में है, ठीक है, कितने लोगों को ये चाहिए। तो डिसाइड द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन, तो वी विल फर्स्ट डिसाइड व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड इन व्हाट क्वांटिटी वी नीड टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, ठीक है। टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके प्रोडक्शन कॉस्ट को भाई साहब मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, जितना हो सके प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। टू एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो आपका भाई साहब जो नेशनल इनकम है उसको अकॉर्डिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। जहां पे भाई साहब आमदनी ज्यादा है वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जनरली ज्यादा है। बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, these are metropolitan cities. Here the cost of living is higher. You will have to pay a higher rent, you will have to pay a higher EMI, you will have to pay higher for petrol prices. Why? Because here the earning opportunities are higher. लेकिन अगर आप किसी गांव खेड़े में जाएंगे जहां पे आपका भाई साहब earning opportunities are lower, the cost of living will be lower as well. समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। सो ये होता है आपका भाई साहब नेशनल इनकम, जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके हिसाब से इकोनॉमिक जस्टिस होती है, ठीक है, क्लियर है, ओके। टू मेक अप्रोप्रिएट प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर, तो आपके जितने भी इकोनॉमिक नीड्स होंगे उसके लिए प्रोविजंस बनाना। इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द फ्यूचर, उसके लिए भाई साहब ग्रेन्स को स्टॉक में रखना, उसके लिए भाई साहब पैसा स्टॉक में रखना, तो इसके हिसाब से इकोनॉमिक नीड्स जो भी होंगे आपके फ्यूचर के उसके हिसाब से प्रोविजंस बनाना, दैट इज कॉल्ड टू डिसाइड फॉर हुम द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, तो किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है, कौन से सेक्टर के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप भाई साहब किसी गांव खेड़े में हैं तो आप वहां पे कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोलने जाएंगे तो शायद चले या ना चले, ठीक है। अगर आपने भाई साहब कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली तो शायद चले या ना चले, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल ली एकदम गाँव खेड़े में बैठकर तो शायद चले या ना चले, ठीक है। लेकिन अगर आप यही सारी चीजें एकदम शहरों के बीचों बीच करेंगे तो चलना ही चलना है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप भाई साहब यहाँ पे शहर में बैठकर ट्रैक्टर बेच रहे हैं या भाई साहब फर्टिलाइजर बेच रहे हैं या जमीन के सीड्स बेच रहे हैं तो यहाँ पे चले या ना चले, है ना, किसके पास जमीन है ये सब करने के लिए।
यही चीज आपको गांव में जाकर करना है, ठीक है। तो कौन सा प्रोडक्ट आप कहां बेच रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल एंड टू whom आर यू ट्राइंग टू सेल। क्या आप बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं। तो डिसाइड फॉर whom द गुड्स विल बी प्रोड्यूस, किसके लिए गुड्स प्रोड्यूस होगा और कहां तक ये भाई साहब जाएगा, ठीक है। और ये तो थैंक यू हो गया रे, ठीक है, थैंक यू हो गया तो थैंक यू भाई साहब, क्या कर सकते हैं।